हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और दूसरा है वेरियस वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग। ओके, तो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम तीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं विच इज गिवन इन योर सिलेबस। फर्स्ट इज एजमा, देन एम्फाइसीमा एंड देन ORD या ऑक्यूपेशनल respiratory disorders. Okay, so let's begin with asthma. Asthma आप सबने सुना ही होगा. So what is asthma? Asthma is allergic reaction in response to some foreign substance. Now that foreign substance can be some gases, fumes, dander, pollen, anything for the person, and it varies from person to person. Okay, so what causes this? Basically the allergens. अब allergens क्या करते हैं? How does this happen? It results in the secretion of histamine of the mast cells in the respiratory tract. Okay, this is very important. और histamine from mast cells जब हो रहा है, it causes three things. First, it causes the smooth muscles of the bronchioles to contract, and this gives the spasmic reaction. Okay, clear? Then it causes edema. Edema or swelling of the bronchi or the bronchioles. Third है, it results in the secretion of excessive mucus. Okay, and fourth is inflammation. Now because of these reasons, what are the symptoms that we see? Coughing, wheezing का क्या मतलब है? Whenever the person is breathing, there is a noise in the background, right? Spasms, difficulty breathing, tightness in chest. Now difficulty in breathing तो होता है specially during the expiration. क्या होता है? secretion of excess of mucus होता है. तो when the person is inspiring, हवा तो चला जाता है, but then they clog. So इसीलिए एक्सपायर करने में नॉट एक्सपायर करने में, I mean हवा को निकालने में, एक्सेल करने में, वो the difficulty is more. So what is the treatment? Now asthma के लिए जो treatment होता है, that treatment is primarily targeted at the symptoms. So treatment is symptomatic. तो क्या दिया जा सकता है? Many times antibiotics is given to cure the infection. अगर respiratory tract में कोई infection है जिसके लिए कि ये trigger हुआ है, so that is given. Bronchodilators, ये जो ब्रोंकियल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसको डायलेट करने के लिए. देन एंटाहिस्टामिन. क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर एजमा. बट एजमा के लिए क्या प्रिवेंशन को बहुत इट्स ऑफ वेरी प्रिवेंशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस बिकॉज इसका एज सच ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक होता है, बट द पर्सन हैज टू अवॉइड द एलर्जन विच ट्रिगर्स, एंड प्रिवेंशन इज समटाइम्स सेड टू बी बेटर देन क्योर और द राइट. अवॉइड एलर्जेंस
that trigger asthma. Clear है all about asthma? Now one thing, asthma is not a genetic disorder but because of some genetic disposition, say for example in a person, किसी के parents को asthma है तो chances are there that that person may be more vulnerable or more prone to getting asthma, not necessarily but more prone. Okay, so now the next disorder is emphysema. So the next disorder is emphysema. Emphysema means what? Inflation, फूल जाना बलून की तरह. ओके, तो इसमें होता क्या है? Irreversible distension of alveoli और and bronchioles. या तो फिर खाली alveoli ही फूल जाएंगे या तो फिर alveoli and bronchioles दोनों ही. ओके, तो ये होता क्यों है और ये irreversible है, मतलब एक बार अगर ये फूल गया तो ये वापस it will not come back to its original shape and size. Okay, cause क्या है? One of the major reason is smoking for a very prolonged period. Okay, तो इसमें होता क्या है? What happens? Septa of the alveoli are destroyed. See, alveoli यूं लगे हुए हैं, right? Like a bunch of grapes. तो यहां पे imagine the surface area. अब अगर बीच का ये सेप्टा गायब हो जाए और ये फूल जाए तो क्या होगा? तो सरफेस एरिया पहले जो इतना था, that surface area is being reduced. तो इसका फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? These are the symptoms. Let me write. Septa of the alveoli is destroyed. As a result, surface area for gaseous exchange is reduced. तो ये जब हो रहा है gaseous exchange भी reduce हो जा रहा है. Elasticity of the alveoli या the bronchioles and lungs are reduced. Now, when an alveoli या lung जो भी elastic होता है, what happens? You stretch it, you leave it, it comes back to the original position. Clear? तो हमारे alveoli जब तक अपना elasticity maintain करते हैं, when we are inspiring or we are inhaling, वो alveoli फूल गए, right? और जब हमें एक्सेल करना होता है वो बिल्कुल उस पोजीशन तक आ जाता है जिस पोजीशन पे वो था. क्लियर है? अब अगर इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हवा तो हमने भर दिया, हमने इसे खींच लिया, पर ये पूरी रिकॉइल होके अपने ओरिजिनल जगह तक नहीं आता, ये डिस्टेंटेड ही रह जाता है. क्लियर है? दिस कैन हैपन एट द एल्वियोलर लेवल, ब्रोंकियल्स लेवल या द लंग का भी इलास्टिसिटी कम हो जाता है. इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वाइल द पर्सन इज एक्सहेलिंग, बिकॉज वो पूरा इलास्टिक वापस नहीं आ रहा है, द इलास्टिसिटी इज डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा हवा निकल नहीं पाता. क्लियर है? तो एक तो गैसियस एक्सचेंज कम हो रहा है, ऊपर से एल्वियोली और लंग्स में हमेशा हवा ज़्यादा भरा पड़ा रहता है. क्लियर? तो इसका क्या सिम्टम? एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्सलेशन डिफिकल्ट हो जाता है. ना ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट्स आर अगेन सिम्टोमेटिक. जैसे जैसे सिम्टम्स या जो सिम्टम्स दिखता है उस सिम्टम को क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है. ओके, तो या तो ब्रोंकोडायलेटर्स दे या ऑक्सीजन थेरेपी. मेनी टाइम्स ऑक्सीजन का छोटा सा सिलेंडर लगा के द पेशेंट इज सप्लाइड विद सम ऑक्सीजन सो दैट द पर्सन कैन ब्रीथ ईजिली. ओके, सो इसीलिए फॉर डिजीजेज लाइक दिस प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर. तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? अवॉइड स्मोकिंग या गिव अप स्मोकिंग इफ समवन इज स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फाइसीमा. Now next the disorder is occupational respiratory disorders. Now the third one is occupational respiratory disorders. Disorders है, so this is not any one disease. ये उन तमाम disorders को refer करता है which occurs due to exposure to one or the harmful substance
which the person gets exposed to due to his or her occupation. जैसे अपने काम के लिए, जैसे कोई स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में है, या कोई मैशन का काम, या कोई मिस्त्री का काम कर रहा है जहाँ पे वो हमेशा सीमेंट और बाली से काम कर रहा हो और सालों साल ये काम कर रहा हो, कोई किसी माइनिंग इंडस्ट्री पे हो, ओके, जहाँ पे डस्ट या कोई और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो, या कोई ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ रेगुलरली वो कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंस को इनहेल कर रहा हो, ऐसे कोई इंडस्ट्री में जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉजेज this disease, and such a group of disorders are commonly referred to as occupational respiratory disorders. तो कॉज क्या है? prolonged exposure, brief exposure से नहीं होता, यूजुअली सालों साल ये काम उसी इंडस्ट्री पे कर रहा हो, to harmful substances such as dust, particulate matter या fumes. तो होता क्या है कि beyond certain point our body defense system cannot take those particulate matters anymore in the respiratory system. Clear है? As a result of what क्या होता है? fibrous tissue हमारे लंग में ग्रो करने लगते हैं. This causes inflammation. ये एक irreversible डैमेज हो जाता है और ये बहुत सालों के बाद पता चलता है, when the person has worked and quite a bit of damage has already occurred. Two such very important examples, one is silicosis and another is asbestosis. Silicosis due to exposure to silica and asbestosis to asbestos. The people, those who are working in silica or asbestos industries, they commonly may suffer from these disorders if they have been working there for a very long time. तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? They have to take preventive measures at work, such as wearing of a mask या कोई other safety gears. They should go for regular health checkups. Awareness होना चाहिए, and you know, if possible, sometimes they need, if they can, take a break from prolonged exposure, do some other job, and then again you can come back like that. Okay, reduce the exposure. हो गया? So with this we are done with the 3 respiratory disorders that are given in your syllabus. अब हम एक बहुत ही interesting चीज़ देखने वाले हैं, which are the volumes and capacities. Okay? So now respiratory volumes and capacities. Very easy and interesting. And I'll really try कि मैं इसको बहुत easily समझा पाऊँ. Okay? Now respiratory volumes and capacities में जाने से पहले I have a bottle. Now यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी बॉटल को पानी भरते हैं, लाइक इतना तक हम भरते हैं, राइट? व्हाट इज वॉल्यूम? लाइक इन जनरल कितना होल्ड हो पा रहा है. बट जब हम कैपेसिटी कहते हैं तो क्या, अगर हमें भरना हो तो बिल्कुल रिम तक कितना हो सकता है, दैट इज अ कैपेसिटी. या इन वेरी कैजुअली हम कह सकते हैं कि हम इस पर कितना ठूस सकते हैं, राइट? आई हैव अ बैग हियर, दिस वन. अगर हम कहें कि इस पे कितना चावल है भर सकते हैं, वी कैन से कि 2 किलो. पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, इस पर 3 किलो भरना है, सो व्हाट डू वी डू? इसको यूँ हिलाते हैं, ठूसते हैं, राइट? एंड देन मैक्सिमम तक, जिसके बाद और हो नहीं सकता, दैट इज कैपेसिटी. क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इन जनरल टर्म्स? नाउ इसी बात को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में देखेंगे. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कुछ होता है और कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करके हमें कैपेसिटीज मिलता है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ टाइडल वॉल्यूम. तो क्या है टाइडल वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर और एक्सपायर थ्रू अ नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सलेशन, जो नॉर्मली हम हवा ले रहे हैं, एंड इट अमाउंट्स टू 500 ml एवरेज, राइट? तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन जो हो रहा है, राइट? क्लियर? नाउ कभी कभी हम क्या करते हैं, वी डू अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन.
तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर जो टाइडल वॉल्यूम से जाता है उससे ज्यादा हवा जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट एक्स्ट्रा गोज इन, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्पिरेटरी reserve volume. Okay, and this is roughly 2500 to 3000 ml. हो गया. Now on the opposite side, हम कभी कभी फोर्सफुली एक्सपायर भी, एक्सलेशन भी करते हैं. या एक्सलेशन, लाइक फिर से हमने नॉर्मल ब्रीदिंग की, अब हम फोर्सफुली कुछ एक्सपायर कर रहे हैं. तो उससे क्या होता है, जो हम हवा टाइडल वॉल्यूम से निकालते हैं उससे ज्यादा निकल जा रहा है. क्लियर है? एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ना एक हम चाहे कितना भी जोर लगा लें, एक्सेल करते वक्त कितना भी कोशिश करें, पर क्या हम अपना लंग्स से पूरा का पूरा गैस निकाल पाते हैं, एयर निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते. तो वो जो एक्स्ट्रा कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे लंग्स में हमेशा रह जाता है. दैट इज कॉल्ड रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर है? ओके. नाउ रिजर्व वॉल्यूम, हमेशा हमारे लंग में थोड़ा सा हवा क्यों रह जाता है? सी, ये बॉटल है, अगर मैं इसे सक करके सारा का सारा हवा निकाल दूं, सो व्हाट विल हैपन, ये धीरे धीरे चपटा हो जाएगा. Why? बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है और अंदर से उसको कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा. सो द सेम अप्लाइज टू आवर लंग्स ऑल्सो. अगर लंग्स से हम पूरा का पूरा हवा निकाल देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे. दैट इज वाई वी ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ रिजर्व वॉल्यूम इन आवर लंग्स. और ये रिजर्व वॉल्यूम जो है, इट इज अबाउट 1000 to 1200 मिलीलीटर. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा हो गया हमारा IRV, ये हो गया हमारा ERV. ओके, ये तो था रेगुलर वॉल्यूम. नाउ लेट अस कम टू कैपेसिटीज, मतलब हम कितना ठूस सकते हैं. अब तक जो हम डिफाइन कर रहे थे, वी वर डिफाइनिंग, say for example, IRV as the volume of air that a person breathes with forceful inspiration. Breathes, not, we were not using the word like can, right? अब हम जब कैपेसिटीज को डिफाइन करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड कैन. इसका मतलब कि क्या, मैक्सिमम कितना, बियॉन्ड दैट पॉइंट और हो नहीं सकता उस पॉइंट तक. ओके, सो सबसे पहले कैपेसिटीज में क्या आता है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है क्या? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. ओके, तो जैसे इसने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, अब इसने जोर से सांस ली, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? टीवी, टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा हो ही रहा है, प्लस द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टीवी प्लस IRV. क्लियर है? रेगुलर प्लस द एक्स्ट्रा. एक्सपायरेशन यहां पे नॉर्मल था. अब हम आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पे. द नेक्स्ट कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या? द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कैन ब्रीथ आउट
आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। सो जैसे यहाँ पे इसने नॉर्मल इंस्पायर किया, उसके बाद ये फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा है, राइट, फोर्सफुली एक्सेल कर रहा है। मुझे ना एक्सपायर बोल रही हूँ तो मुझे बार बार एक्सपायर से डेथ 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 लग रहा है। दैट इज वाई आई एम यूजिंग द ट्राइंग टू ब्रिंग द वर्ड एक्सेल। एनीवेज, तो हाउ मच ही कैन, वो कितना कर सकता है। सो जाहिर सी बात है दैट इज गोइंग टू इंक्लूड दिस प्लस दिस, सो इट इज गोइंग टू बी टीवी प्लस ERV। क्लियर है? नॉर्मली जितना हवा निकाल रहा है प्लस द ERV जितना निकाल रहा है। नाउ फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्या? फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम नॉर्मली इतना सांस निकालें, राइट, उसके बाद तो हमारे लंग्स पे कितना रह जाता है। सो दैट इज गोइंग टू इंक्लूड व्हाट? हमने नॉर्मली क्या निकाला? हम नॉर्मली क्या निकालेंगे? द टीवी निकालेंगे। सो 500 ml हमने निकाल दिया, तो लंग्स पे क्या रह रहा है? जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने फोर्सफुली नहीं निकाला वो रह जा रहा है। सो द ERV प्लस द रेसिजुअल वॉल्यूम, राइट। सो दिस इज ERV प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम। दिस इज नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर हम इसको निकाल नहीं रहे हैं तो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी में वो ERV तो हमारे लंग्स में रह रहा है, और ERV के बाद ये रेसिजुअल वॉल्यूम तो हमेशा हमारे लंग्स में रहना ही रहना है। सो इज फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्लियर टू यू? नाउ कम्स द नेक्स्ट वन विच इज वाइटल कैपेसिटी। नाउ वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forceful expiration, या the volume of air the person can breathe out after a forceful inspiration। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन हमने किया कहाँ है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये हो गया। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन जब हो रहा है, अब वाइटल कैपेसिटी को ना मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो क्या आ जा रहा है उसमें? IRV प्लस द TV, राइट। ये हो सकता है, या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वो फिर से कितना इंस्पायर कर सकता है। तो ERV भी इस पे आ गया, प्लस ERV। क्लियर है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? ओके। Now the last capacity is total lung capacity. Okay, this one. Total lung capacity मतलब क्या? The total volume of air that a person can accommodate in his lungs as well as the respiratory passage. तो ये सब कुछ क्या इंक्लूड करेगा? मतलब सब कुछ। तो वाइटल कैपेसिटी में हमारा IRV, TV, ERV आ रहा है, तो बचा क्या? RV। सो टोटल लंग TLC, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू VC प्लस RV। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? हैव आई बीन एबल टू मेक इट इजी फॉर यू? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो सारे के सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है, इनको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड द स्पायरोमीटर। Okay, and these volumes and capacities are very useful for clinical diagnosis and clinical evaluation of many respiratory diseases. Okay, जैसे for example मैं एक बात समझा रही हूँ यहाँ। अभी अभी हमने एम्फाइसीमा पढ़ा है। एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है? The person can inhale, बट वो उसका एक्सहेलेशन जो होता है वो नॉर्मल होता नहीं है। तो उसका IRV तो ठीक आएगा, लेकिन उसका ERV क्या होगा? ERV विल बी रिड्यूस्ड। व्हाई? बिकॉज ही इज अनेबल टू पूरी एम्प्टी हिज एल्वियोली। ओके, समझ में आ रहा है कि इन सब वॉल्यूम्स और क्लिनिकल से कैसे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? एक सच एग्जाम्पल मैंने एम्फाइसीमा से समझाया।
So with this we are done with the chapter breathing and exchange of gases, and please let me know in the comment section students कि ये volume और capacity if I have been able to explain and make it easier for you or not. Okay. With this we come to the end of this chapter. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है please don't forget to give it a like, subscribe to the channel and share it with your friends. And I am going to see you very soon with a video in another chapter. Till then, bye.